पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं सौरभ जौहरी और जनहित के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर, चाहे वो फीस को लेकर हो, किताबों को लेकर हो, हर साल ड्रेस बदलने को लेकर हो या फिर बच्चों के परिजनों पर दबाव बनाने को लेकर हो। भटिंडा प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर बोले परिजन। जरा देखिए, ये है भटिंडा का निजी स्कूल, जहां पर खबर फास्ट की टीम पहुंची और देखा कि स्कूल के बाहर बच्चों के परिजनों की भीड़ लगी हुई है। इस भीड़ को देखकर जब हमारी टीम जनता के बीच पहुंची तो फिर खबर फास्ट के कैमरे को देखते ही वहां मौजूद बच्चों के परिजन अपना दर्द बयां करने लगे। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी किस तरह से परिजनों पर हावी हो रही है, वो खुलकर ये बात हमारे कैमरे के सामने बताने लगे। जैसे कि हम आज जनहित कार्यक्रम में लोगों के बीच में जाके उनकी समस्या सुनते हैं, उसी के तहत आज आए हैं प्राइवेट स्कूलों की समस्या। कुछ पेरेंट्स मेरे साथ में हैं, उनसे पूछते हैं फीसों को लेकर या प्राइवेट स्कूलों को पढ़ाई को लेकर भी कैसा उनका व्यवहार है, क्या क्या वो चलाना चाहते हैं, उनसे ही बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਲੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਪਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੈਸਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਡੀਓ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆਂਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲੇ ਏਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਫੀਸਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਦਾਖਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫੀਸਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇੰਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਦਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ पेरेंट्स का कहना यही है भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि जो सरकारी स्कूलों का म्यार है वो इतना अच्छा नहीं है, बच्चे को बैठने के लिए या कोई भी सुविधा उनको नहीं मिल रही, इसलिए उनको प्राइवेट स्कूलों में जाना पड़ता है। लेकिन जो उनकी फीस है, फीस स्ट्रक्चर है या और खर्चे हैं, वो मान जो कोर्ट के जो नियम है या कानून उन्होंने बनाए हुए हैं उनको ना मानकर वो अपनी मनमानी करते हैं। इनको जरूरत है सरकार को इधर ध्यान देने की, जो शिक्षा का पद्धर है ऊंचा उठाया जा सके और शिक्षा से ही किसी देश को संपन्न बनाया जा सकता है। इसलिए बहुत इनका साफ साफ कहना है भी जो प्राइवेट स्कूल है अपनी मनमानी करते हैं
और सरकारी स्कूलों का जो पद्धर है वो उस लेवल तक नहीं है भी अपने बच्चे उनके सारे छोड़ दिए जाएं। खबर फास्ट के लिए बठिंडा से विनोद बांसल। और जनहित में यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूँ और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहाँ भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहाँ पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। सिर्फ खबरें नहीं, हकीकत दिखाते हैं। हर मुद्दा बेबाकी से उठाते हैं। जनता से जुड़ी खबर फास्ट की मुहिम देखिए जनहित सोमवार से शुक्रवार शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। Here gravity and physics don't call the shots and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people for whom excellence is not a job but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा, हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्राइवेट स्कूल बच्चों के घर वालों से मनमानी फीस वसूल रहे हैं। ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि खबर फास्ट के कैमरे के सामने खुद जनता बोल रही है। चलिए प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को जानने के लिए गुरुग्राम की जनता से बात करते हैं और जानते हैं वो इस बारे में क्या कहती है। भटिंडा प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर बोले परिजन। जरा देखिए, ये है भटिंडा का निजी स्कूल, जहां पर खबर फास्ट की टीम पहुंची और देखा कि स्कूल के बाहर बच्चों के परिजनों की भीड़ लगी हुई है। इस भीड़ को देखकर जब हमारी टीम जनता के बीच पहुंची, तो फिर खबर फास्ट के कैमरे को देखते ही वहां मौजूद बच्चों के परिजन अपना दर्द बयां करने लगे। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी किस तरह से परिजनों पर हावी हो रही है, वो खुलकर ये बात हमारे कैमरे के सामने बताने लगे। जैसे कि हम आज जनहित कार्यक्रम में लोगों के बीच में जाके उनकी समस्या सुनते हैं, उसी के तहत आज आए हैं प्राइवेट स्कूलों की समस्या। कुछ पेरेंट्स मेरे साथ में हैं, उनसे पूछते हैं फीसों को लेकर या प्राइवेट स्कूलों को पढ़ाई को लेकर भी कैसा उनका व्यवहार है, क्या क्या वो चलाना चाहते हैं, उनसे ही बात करते हैं। शशिकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਫੀਸ नहीं। और यहां पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੇਟੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਬੇਟੀ ਅਲੀਸ਼ਾ। सत श्री अकाल।
मैं जो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀਆਂ ਸੰਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੈਨੋਰਮਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਦਾ ਸਥਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। दो 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। क्या आप भी हैं हड्डी रोगों से परेशान? दर्द सूजन में नहीं मिल रहा आराम, चलने के दौरान हड्डियां करती है परेशान? डॉक्टर हेमंत मेडिकल ऑफिसर गुरुग्राम, डॉक्टर विकास PHC भौंडसी SMO घनगोला देंगे आपके हर सवाल का जवाब। संपर्क करें 01166807701 और 01166807702। देखिए हमारी खास पेशकश आपका डॉक्टर आज रात 8:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो बीमारी कमजोरी, 2 दिन का फायदा फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। रेमाफिन दे 3-in-1 कॉन्स्टिपेशन रिलीफ, जेंटल, इफेक्टिव और इसकी आदत बिल्कुल नहीं। इसका फॉर्मूला दे नॉन हैबिट फॉर्मिंग, जेंटल और इफेक्टिव 3-in-1 कॉन्स्टिपेशन रिलीफ। अब उपलब्ध टेस्टी मिंट और मिक्स्ड फ्रूट फ्लेवर्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरुग्राम की जनता प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से परेशान है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना काल में लोगों की रोजगार छिन गया, परिवार का पेट भरना मुश्किल हो गया। लेकिन जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, स्कूल वाले लगातार उन पर दबाव बनाते हैं। खबर फास्ट के कैमरे के सामने परिजनों का दर्द छलका। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले हम आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में भी बता देते हैं। साथ ही इस बारे में पलवल की जनता क्या कहती है वो भी सुना देते हैं। गुरुग्राम स्कूल संचालक से बात।
प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के बारे में हमने अभिभावकों से जाना। उन्होंने कहा कि लगातार प्राइवेट स्कूलों वाले मनमानी करते हैं, कभी फीस को नाम पर और कभी ड्रेस के नाम पर, कभी किताबों के नाम पर पैसा, मोटा पैसा वसूलते हैं। जितना पैसा लेते हैं क्या उतनी पढ़ाई होती है? हमारे साथ में एक स्कूल, निजी स्कूल के संचालक, उनसे बात करेंगे कि लगातार जो आरोप लगता रहा है कि प्राइवेट स्कूल वाले, निजी स्कूल वाले मोटा पैसा वसूलते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल वाले मोटा पैसा वसूलते, सारे जितनी भी 5 उंगली होती है बराबर नहीं होती है। काफ़ी स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना काल में जितने भी बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स से कोरोना से ग्रसित थे या कुछ मिस हैपनिंग हुई थी, उनकी फ़ीस बिल्कुल माफ़ भी की है। हम अपने स्कूल के बारे में बताते हैं, हमने काफ़ी गरीब बच्चों के लिए भी माफ़ कर रखी है, जो कोरोना काल में जिनके बच्चों की ड्यूटी छूट गई थी या मतलब कि जिन गरीब बच्चे हैं उनको। हाँ, लेकिन कुछ स्कूल हैं, नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन है कुछ स्कूल जो मतलब मनमानी करते हैं, वो गलत है। उनको चाहिए कि मतलब कि जो गरीब बच्चे हैं या फिर जिनके पेरेंट्स के साथ कोई मिसहैपनिंग हुई है, उनको फ्री पढ़ाया जाए जब तक वो उनके स्कूल में पढ़ते हैं। सर, क्या ये गलत नहीं है? कभी ड्रेस के नाम पर किया जाता है कि आपने ड्रेस यहीं से खरीदनी होगी, और किताबों के नाम पर लगातार कभी कोई कार्यक्रम किया जाता है, उसके ऊपर भी पैसे वसूले जाते हैं। पेरेंट्स बड़े दुखी हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है, लेकिन जितने पैसे वो देते हैं प्राइवेट स्कूल में, क्या उतनी पढ़ाई होती है? प्राइवेट स्कूल में जितने पैसे देते हैं उससे कहीं ज़्यादा ही पढ़ाई होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कहना चाहेंगे हम कि मतलब कि जो मनमानी कर रहे हैं जो स्कूल वाले कि ड्रेस यहीं से खरीदनी है, किताबें यहीं से खरीदनी है, वो गलत है। मतलब कि बच्चा या मतलब कि पेरेंट्स स्वतंत्र है, वो कहीं से भी ड्रेस खरीद सकते हैं, बुक्स वगैरह कहीं से भी खरीद सकते हैं। देखिए, बिल्कुल एक स्कूल के संचालक हैं, इतना ज़रूर है, उन्होंने यही कहा कि जो स्कूल वाले गलत करते हैं उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए, इतना फिलहाल ज़रूर है, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों की फीस माफ़ जरूर की है। लेकिन उन्होंने ये भी उदाहरण दिया कि 5 उंगली समान नहीं होती, क्योंकि अगर एक प्राइवेट स्कूल वाला गलत करता तो और 4 स्कूल वाले के ऊपर आवाज़ जरूर उठती है, यानी उंगली जरूर उठती है। अभिभावक हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? जो लगातार मुद्दा सामने आता है कि प्राइवेट स्कूल वालों की मनमानी सामने आती है, फीस वसूल को लेकर मोटी फीस वसूलते हैं, इसमें मैं ये कहूँ जो स्कूल जो खुल रहे हैं अपनी कोरोना काल में बहुत मारामारी ही, लोगों की जॉब छूट गई, उसके बावजूद स्कूलों ने बहुत से स्कूलों ने रिक्वेस्ट करने के बाद फीस माफ़ भी कर दी। बहुत से ऐसे बड़े स्कूल हैं जिन्होंने अपनी फ़ीस की मनमानी को लेकर लोगों ने सीएम विंडो तक लगाई, कोर्ट तक के दरवाजे खटखटाए, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक भी। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा जो हरियाणा सरकार को आपके माध्यम से, जो घर घर में स्कूल खुले पर उनकी दुकान की तरह लोगों ने स्कूल खोले, उनके ऊपर सरकार कार्रवाई करे। एक 2 कमरे लेके 20 बच्चे घेर के बैठ गए, ना तो उनको ट्यूशन है ना बैठने की कोई व्यवस्था है, उसमें सरकार कुछ सोचे। दूसरा जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने पोल्यूशन के उसमें सारे स्कूल बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे निजी स्कूल थे उन्होंने अपनी स्कूल फिर भी खोले रखे, सरकार कार्रवाई करे, उनको देखे। यानी आपका कहना यह है कि सरकार ने शिकंजा कसना चाहिए निजी स्कूल के ऊपर जो मनमानी करते हैं, मोटी फीस वसूलते हैं। बिल्कुल, सारे स्कूल वाले सब संचालक एक जैसे तो नहीं, तो बहुत से भले आदमी, बहुत से ऐसे होते हैं अपनी मनमानी करते हैं, अभिभावकों पेरेंट्स को परेशान करते हैं, फीस के नाम पर, ड्रेस के नाम पर, एक्टिविटीज़ के नाम पर मनमाने पैसे वसूल करते हैं, किसी की सुनते भी नहीं। अच्छा, एक बात और बताइए, आपकी एक सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई होती है, नाम मात्र फीस वसूलती लगती है, वहाँ पर अपने बच्चे लोग क्यों नहीं भेजते जनता? ये तो मैं खुद अपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल बौंडसी का SMC सदस्य रहा हूँ। हमने जागरूकता अभियान गाँव में चलाया है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल की बजाय सरकारी स्कूलों पर, सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं क्वालिफाइड असिस्टेंट की जो परीक्षा पास करके आते हैं और बड़े अच्छे क्वालिफाइड टीचर हैं, तो अब प्राइवेट स्कूल में से बढ़िया पढ़ाई हमारे स्कूलों में हो रही है। हमारा जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसका रिजल्ट 100% तक पहुंचा, काफ़ी बच्चे मेरिट भी लाए हैं और खेल के उसमें भी बहुत अव्वल है। हमारे जो पिछले टूर्नामेंट हुए थे 16 बच्चे हमारे जिले में फर्स्ट सेकंड नंबर लेके आए हैं। देखिए, बिल्कुल सरकारी स्कूल में ये ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं होती, सरकारी स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती है, बच्चे अच्छी पढ़ाई करते हैं, खेलों में भी आगे रहते हैं। फिलहाल सरकारी स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती है, बच्चे फर्स्ट आते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, क्वालिफाई वहाँ पर टीचर होते हैं। लेकिन अपने खुद ये सोच बदलनी होगी कि सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजें, क्योंकि वहाँ पर भी अच्छी पढ़ाई होती है। और सरकार से लगातार अभिभावक अपील करते आए हैं कि निजी स्कूल वाले के ऊपर सरकार ने एक शिकंजा कसना चाहिए। अगर कोई निजी स्कूल वाला कोई जो फीस है, मोटी फीस वसूलता है, कभी जूतों के नाम पर, कभी ड्रेस के नाम पर, कभी किताबों के नाम पर, उसके ऊपर भी शिकंजा कसना चाहिए, ताकि जो अभिभावक है वो उन पर ज़्यादा मोटी फीस वसूल ना कर सके। ये देखना होगा सरकार की तकनीक और सरकार के जो आदेश हैं कहाँ तक वो प्राइवेट स्कूल फॉलो करते हैं या नहीं। कैमरामैन अनिल मंगला के साथ मैं सूरज दुवन, खबर फास्ट, गुरुग्राम। कोरोना महामारी में हर स्कूल बंद थे, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की फीस का मीटर लगातार चालू रहा। परिजनों पर दबाव बनाया गया तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी की मार झेल रहे परिजन न्याय के लिए कोर्ट के दरवाजे पर जाएंगे। इस केस में ऐसा ही हुआ। परेशान परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर गुहार लेकर गए, तो वहीं कोर्ट ने भी परिजनों के दर्द को जानकर प्राइवेट स्कूलों के लिए
सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी। प्राइवेट स्कूलों में लाखों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्कूलों की मनमानी की वजह से उनके अभिभावकों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी है और अभी भी वो ये प्रताड़ना सह रहे हैं। उसके बाद याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। स्कूल फीस को लेकर मचे चौतरफा बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन छात्रों की स्कूल फीस पेंडिंग है, स्कूल उसका न तो नाम काट सकते हैं और न ही परीक्षा में बैठने से रोक सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश राजस्थान से जुड़े एक केस में आया, जिसे अब हरियाणा और पंजाब में भी लागू कर दिया गया है। उसके बाद प्राइवेट स्कूलों के लिए स्कूल फीस वसूलने के मसले पर उच्चतम न्यायालय ने नई गाइडलाइन तय कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, प्राइवेट स्कूल छात्र का नाम नहीं काट सकता। स्कूल फीस पेंडिंग होने पर भी छात्र को नहीं निकाला जा सकता। छात्र को स्कूल परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जा सकता। प्राइवेट स्कूलों में 2019-20 सत्र में जो फीस तय थी, वही फीस 2020-21 सत्र में भी लागू होगी। नए सत्र में स्कूल फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। अभिभावक लंबित स्कूल फीस 6 महीनों में दे सकते हैं। परिजनों को स्कूल फीस भरने में परेशानी है तो वो स्कूल को इस बारे में बताएं। फीस माफ करने की अर्जी पर स्कूल सहानुभूति के साथ छात्र अभिभावक के हक में फैसला लें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आदेश की धज्जियां उड़ाई गई। ये सिर्फ पंजाब, राजस्थान, गुरुग्राम में नहीं हो रहा, बल्कि रोहतक में भी परिजनों की प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के दंश से परिजन गुजर रहे हैं। खबर फास्ट की जनहित टीम आज जनता के बीच जाकर प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी है उसको लेकर के आज सवाल करेगी और क्या जो पब्लिक जो है प्राइवेट स्कूलों को जो पैसा देती है, जो फीस देती है, क्या उनको वो सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही, या इसके अलावा जो डेस्क के जो कोड समय समय पर बदले जाते हैं, इसके अलावा जो नई किताबें जो लगाई जाती हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के क्या है हमारे सवाल जनता से सीधी करेंगे बात। कितने संतुष्ट हैं प्राइवेट स्कूलों से वो बात करेंगे। इस वक्त कुछ महिलाएं हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? कमला जी। कमला जी, आप बताइए कि जिस तरह से प्राइवेट स्कूल फीस ले रहे हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? आपकी उतनी पढ़ाई बच्चों की होती है? नहीं होती जी, नहीं होती जी। तो क्या कहेंगे प्राइवेट स्कूलों को जिस तरह से क्या कहेंगे जी, इतनी हो ही नहीं रही हमारी पढ़ाई बच्चों की, फीस ज़्यादा लग रही है, हमारे फांसी दे रहे हैं भाई वो जमा करवाओ। अब जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में आप बच्चों को भेजते हैं, उतनी पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं? उतने पढ़ाई से संतुष्ट होना पड़ा जब तक कि हमारे को हम अभी बेनिफिट दे दो, सर्टिफिकेट दोगे तभी हम स्कूल सरकारी स्कूल वाले कहते हैं हम नहीं एडमिशन दे सकते, क्योंकि जब तक हमारे को ये वाले सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो जिस तरह से देख रहे हैं कुछ युवा भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि जिस तरह से प्राइवेट स्कूल की मनमानी जो टीचर्स हैं वो करते हैं, क्या कहना आपका? अरे सर नमस्कार। प्राइवेट स्कूल वालों का जो चल रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि वो अपना गलत कर रहे हैं कुछ, बट उन्हें भी सैलरी देनी है अपने कर्मचारियों को, लेकिन सैलरी हमें नहीं पता वो दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, उसका क्या मैटर है। बट हमें जो स्कूल के नाम पे जो हमें एक वो जो एनुअल चार्जेज हैं, वो एनुअल चार्जेज जोड़ के ही हमें से फीसें वसूल की जा रही हैं और वो चलता रहेगा। ये धांधलेबाजी परमानेंट ही चलती रहेगी, इसमें हम कभी भी कोई भी सुधार नहीं कर सकते। स्कूल जो हैं वो मनमानी कर रहे हैं, फ़ीस वसूल कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया था कि सिर्फ जो है फ़ीस जो लेंगे, इसके अलावा एनुअल चार्जेस नहीं लेंगे, वो जो चार्ज हैं स्कूल के बिल्डिंग फंड या और चीज़ें वो नहीं लेंगे। उसके बावजूद भी जो बच्चों से सर कहीं ना कहीं फीसें भी अपनी मनमानी से ली जा रही हैं कि एक निर्धारित नहीं है कि आपकी फ़ीस इतनी होगी और आपको फर्स्ट क्लास की फ़ीस इतनी होनी चाहिए या 8th क्लास की फ़ीस इतनी होनी चाहिए। ऐसा कोई सरकार को गाइडलाइन करना चाहिए कि 8वीं क्लास की फ़ीस इतनी हो और 10वीं क्लास की फ़ीस इतनी हो, मतलब एक एक्चुअल डाटा आ जाना चाहिए। हर आम आदमी, गरीब आदमी, उसको ये पता होना चाहिए कि स्कूल की फ़ीस है कितनी। जिस तरह से मनमानी के चलते कहते हैं कि भाई आप फ़ीस जमा कराओगे तो रोल नंबर देंगे, जो है पेपर में एग्ज़ाम में बैठने देंगे, इस तरह की भी बातें भी सामने।
सर देखो, कहीं ना कहीं किसी आदमी को कर्जा उठाकर बच्चों को पढ़ाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हम ये सोचें कि बच्चों को हम घर बिठाए रखें, कब तक बिठाए रखेंगे? माँ बाप भी बोर हो चुके हैं घर बिठा के, बच्चे भी उब चुके हैं, तो उनको स्कूल तो भेजना ही था। इस साल से हमने भी बच्चों को भेजा, लेकिन हम ये सोचें कि हमने लास्ट साल उनको भेजा नहीं है स्कूल में, बट वो अगर 2 महीने स्कूल गए हैं तो साल की पूरे साल का जो फीस बनता था, जो एक जायज़ फीस था, वो जायज़ भी लिया गया है और उसकी भी कोई रसीद नहीं दी गई है। रसीद वगैरह मांगी गई तो उसकी कोई रसीद नहीं दी गई। उसकी रसीद के एवज में हमें ये लिख के बोला गया कि आपको एक कच्चे कागज़ पे रसीद बना के दी गई है, ये रसीद आपका क्लियर हो गया। उसका ना कोई हमें बच्चों का पास आउट दिया गया है कि हमारे बच्चे उस क्लास में कितने नंबर लेके पास हुए हैं, कोई हमें मतलब, यानी कि काफी दिक्कतें आप लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। पैसा तो देना ही पड़ेगा जी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, पैसा तो अगला लेगा ही लेगा। बिल्कुल। प्राइवेट स्कूलों की जिस तरह से कहा कि मनमानी के चलते काफ़ी दिक्कतें आम लोगों को होती हैं, काफ़ी परेशानियां होती हैं, और महिलाएं हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि उनके बच्चे भी जो स्कूल में जाते हैं तो क्या कहना है। आपके बच्चा स्कूल जाते हैं? हाँ जी। क्या कहेंगे, प्राइवेट स्कूल जो फीस लेते हैं तो क्या मनमानी के चलते आपके बच्चे की पढ़ाई प्रॉपर होती है? पढ़ाई तो प्रॉपरली हो रही है जब तक फीस दो। अगर फीस नहीं है तो बच्चों को क्लास से बाहर भी निकाल देते हैं, घर भी भेज देते हैं। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं, जो 2 महीने बच्चे गए थे, कोरोना के टाइम नहीं गए थे, तो आप 2 महीने की लो ना, पूरे साल की किस हिसाब से ले रहे हो? फिर आप उसमें आप पेपरों की भी फीस जोड़ देते हो, या तो मंथली फीस लो या पेपरों की फीस ले लो। अब बंदे का रोजगार नहीं है तो बंदा कहाँ से पैसे लेके आएगा इकट्ठा? एकदम से इतना जोर थोड़ी डालना चाहिए स्कूल वालों को, मजबूरी भी समझनी चाहिए बंदे की। अभी अभी काम चालू हुआ है तो आप सब्र करो ना। तो काफ़ी दिक्कतें आप लोगों को? हाँ जी, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। क्लास से बच्चों को बाहर निकाल देते हैं, कभी घर भेज देते हैं बैग लेके, पर ऐसे चलेगा तो इच्छा सब हम सरकारी में ना डाल दें। हम किस लिए डाल रहे हैं बच्चों? प्राइवेट में आप क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि सरकार में जो है आपको फ्री भी शिक्षा देती है बच्चों को, और उसके अलावा और सुविधाएं भी देती है, तो प्राइवेट में किस लिए जाते हैं? सर प्राइवेट में हम इसलिए जाते हैं कि सर बच्चों का भविष्य बने। जहाँ जितना सरकारी में मानती हूँ भी होती है, फैसिलिटी ज़्यादा होती है, पढ़े लिखे टीचर्स भी सरकारी में होते हैं, लेकिन प्राइवेट में फिर भी जो इतने एजुकेटेड से जो इसलिए हम डालते प्राइवेट में भी। हमारे बच्चे कुछ हम तरक्की नहीं करें कि हमारे बच्चे तो तरक्की करें ना, पर सर ये नहीं समझते ना, सर को सिर्फ फीस से मतलब है, बच्चों से मतलब नहीं है। प्राइवेट स्कूल में हम ये भेजते भी, सरकारी स्कूल यहाँ से दूर पड़ता है, तो वो छोटे बच्चे हैं नहीं जा पाते, थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाती है। अपनी कोई कन्वेंस नहीं है, बच्चे को छोड़ने वाला भी कोई नहीं है। लड़कियां मेरे तो वैसे ही नहीं निकल सकती घर से बाहर, मैं अकेले नहीं भेज के राजी होती। भैया पास में है तो हम ये सोचते भी पास में ही बच्चा सही है, सेफ है। और क्या क्या दिक्कतें आपको होती है प्राइवेट स्कूल की अगर बात करें तो? नहीं, प्राइवेट स्कूल में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बस फीस की ही लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। अभी फीस के ऊपर एकदम से बर्डन दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी क्लियर करो। लॉकडाउन की जो फीस को लेकर के जो है पीछे जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के चलते बात की गई थी, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो फीस ली जा रही है उतनी जो हालांकि पढ़ाई उसकी सुविधाएं जो है नहीं मिल पाती। पेरेंट्स से फीस जरूर ली जाती है लेकिन उसके हिसाब से पढ़ाई नहीं होती है। साथ में ये भी कहना है कि अच्छे स्कूल जो गवर्नमेंट्स के हैं उनमें पढ़ाई अच्छी होती है, क्योंकि टीचर्स भी अच्छे होते हैं और पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो ग्रेजुएशन तक ही सीमित होते हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी पढ़ाई को लेकर के बार बार पेरेंट्स जो है प्राइवेट स्कूल में एडमिशन देते हैं। तो प्राइवेट स्कूलों की जिस तरह से मनमानी है, काफ़ी हद तक लोगों का कहना है कि सरकारी स्कूल में जो है ज़्यादा पढ़े लिखे और सैलरी वाले टीचर्स होते हैं, तो इसलिए सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजना चाहिए। जितेंद्र पांचाल, खबर फास्ट न्यूज़, रोहतक। तो जनहित में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही धधकते मुद्दे के साथ जो जनता से जुड़ा होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।